in this lecture we are going to discuss about instantaneous acceleration, and then we'll also do some questions based on instantaneous velocity and instantaneous acceleration. Alright, so let us start with this concept of instantaneous acceleration. Okay, so as we have already seen what is average acceleration. Average acceleration is A average is equal to total change in velocity by total change in time. Total change in velocity by total change in time, right? So let us consider that there is a graph like this. तो यहाँ पे this is a velocity time graph. Okay, this is v, this is t, this is velocity time graph here, and let us say this is the graph like this. Okay, so if we take two time instants, let us say this is the time instant t1 and this is the time instant t2. ठीक है, इस तरह से we have taken two time instants. Okay, so at this two time instants the velocity of the particle is different. Let us say at t equal to t1 the velocity is v1, and at t equal to t2 the velocity is v2. So v1 and v2. Okay, so average acceleration means what, कि ये जो दो टाइम इंस्टेंट्स हैं, इस दो टाइम में what is the total change in velocity and इसी दो टाइम what is total change in time, उसका रेशियो, right? That is delta v by delta t. Okay, delta v by delta t. So this portion, this is total change in velocity, that is delta v, and this is total change in time. So the ratio of this gives us average acceleration, or we can say that this is basically the average slope. This is basically the average slope of VT graph. Average slope of VT graph, right? Delta v by delta t. Just like the average slope of y versus x graph is delta y by delta x, similarly the average slope of VT graph is delta v by delta t. Alright, now if we decrease this time instant, right, make it small as much as possible, so this average slope will become instantaneous slope. Alright, that is if we apply limit delta t equal to 0, so then the instantaneous acceleration will be achieved. That is, the instantaneous acceleration will be limit delta t tending to 0. So we'll apply this limit on the average acceleration, right? On the average acceleration, I will first write here a average. All right, I'll first write here a average. So I am applying a limit on the average acceleration such that delta t becomes small, very small, such that delta t tends to 0. So then this average acceleration will convert into instantaneous acceleration. So limit delta t tending to 0, the average acceleration, which is delta v by delta t, right? So this will become, जैसा कि आपको याद है, लिमिट हमने y-x के ग्राफ में समझाया था, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x. क्या हुआ था, ये हो गया था dy बाई dx. ये क्या हो गया था, dy बाई dx हो गया. तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv बाई dt. ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt. तो दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, तो ये क्या आ गया, ये आ चुका है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ऑलराइट, सो दिस इज the rate of instantaneous rate of change of velocity. Okay, this is not the average, this is the instantaneous slope of this graph. So we can also say that this is basically the instantaneous slope, right? Instantaneous slope of this graph, v versus t graph. Instantaneous slope of v versus t graph. All right, so this is instantaneous acceleration. Okay, सो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली dv by dt है.
is the instantaneous rate of change of velocity with respect to time. ठीक है, dv by dt. Okay students, now let us consider the velocity in vector form. So let us say if we have the velocity as vx I cap, vy j cap and vz k cap, like that. ठीक है, if the velocity is given in the in ijk form, so I'll just start from here. Velocity is given to us as vx I cap plus vy j cap plus vz k cap. So the velocity is given to us. Okay, now this velocity is given in its component forms. In all its components are mentioned, the x component, y component, z component सब दिया गया है यहाँ पे. ठीक है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है. दिस इज जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सम जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, जो कि जिसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट दिया होगा. ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा. ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग, राइट, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, टाइम के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा वेरिएबल है वो टाइम है. जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन सब चेंज हो रहा है उसका. तो हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, ये यहाँ पे तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, वी एक्स आई, वी वाई जे प्लस वी जेड के, राइट, इस तरह से है. तो यहाँ पे आपको पता है डेरिवेटिव्स में रूल क्या है कि अगर तीन टर्म्स हैं तो आप उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दोगे, राइट, मतलब तीनों को अलग अलग आप डिफरेंशिएट कर दोगे. तो डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ वी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ वी जेड के कैप. ऑलराइट, तो ये जो चीज़ है डी वी बाई डी टी, ये क्या हो गया, डी वी बाई डी टी हो गया एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया. तो ये हो गया ए इंस्टेंटेनियस, जिसको हम सिर्फ ए लिखते हैं. तो जैसे यहाँ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आई एन एस टी लिख दिया है, ए इंस्टेंटेनियस. तो अभी डी वी एक्स बाई डी टी ये हमें देगा ए एक्स, यानी एक्सेलरेशन का एक्स कॉम्पोनेंट. ठीक है, और ये हमें देगा एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट यानी ए वाई जे कैप, और ये हमें देगा एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट यानी ए जेड के कैप. तो अगर हमारे पास वेलोसिटी है जो कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, तो हम एक्सेलरेशन भी एक्स वाई जेड कंपोनेंट के फॉर्म में निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया. अब जो है यहाँ से ये एक्सेलरेशन मिल चुका है. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x कंपोनेंट है, राइट, जो एक्सेलरेशन का जो x कंपोनेंट है यानी ax जो है वो क्या है, वो है डी वी एक्स बाई डी टी, डी वी एक्स बाई डी टी. ए वाई क्या है, ए वाई है डी वी वाई बाई डी टी, और ए जेड क्या होगा, ए जेड हो जाएगा डी वी जेड बाई डी टी. ठीक है, डी वी जेड बाई डी टी, ये हो गया अपना ए वाई ए एक्स ए वाई ए जेड. ऑलराइट, ओके. और अगर आपको ए का मॉड निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मॉड निकालना है, तो आपको पता है वेक्टर में आपको सिखाया गया था कि वो हो जाएगा अंडर रूट, तीनों कंपोनेंट का आप स्क्वायर कर लो, उसका स्क्वायर रूट ले लो. ठीक है, स्क्वायर एंड ऐड ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और उसका आप क्या ले लो, आप उसका स्क्वायर रूट ले लो. तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन का मॉड. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम लोग यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स लिख लेते हैं. लेट अस राइट डाउन सम कंक्लूजन्स, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, प्लीज नोट डाउन दिस. ऑलराइट, यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर लीजिए, एंड देन वील राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ऑलराइट, देन वील राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइंट नंबर 1 ये है कि एक्सेलरेशन और पोजीशन इन दोनों का क्या रिलेशन है. तो वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ. सबसे पहला, द फर्स्ट थिंग, पहला पॉइंट ये है कि जो आपको पता है कि वेलोसिटी हम क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, ओके. और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बार बार वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी है. ठीक है, तो ये हो गया डी बाई डी टी, और v ये क्या है, v डी वी बाई डी टी. तो d बाई डी टी
और v का मतलब क्या है, v है dx बाई dt, तो ये हो गया dx बाई dt। मतलब आपको क्या मिला, आपको मिला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2x बाई dt2, यानी एक्सेलरेशन जो है इट इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन, राइट। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। सो लेट अस राइट दिस पॉइंट, आप लोग भी लिख लीजिए कि एक्सेलरेशन जो है इज द, एक तो वेलोसिटी क्या है उसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक तो उसका जो डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एक और आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, ऑफ पोजीशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर हमें x का एक्सप्रेशन दिया गया है, राइट, तो पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि अगर हमें x का एक्सप्रेशन दिया है, मानिए x दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमें अगर v निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इससे हमें v मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हमें v मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हम क्या करेंगे, अब हम v को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें a मिलेगा dv बाई dt, तो ये हमें क्या मिलेगा, a, एक्सेलरेशन। तो ऑब्वियसली ये अगर f ऑफ t है तो इसको हम g ऑफ t कह सकते हैं और इसको हम h ऑफ t कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग फंक्शंस होंगे, ठीक है। वी कैन कॉल दिस आर थ्री डिफरेंट फंक्शंस। तो x को डिफरेंशिएट करने से आपको v मिल रहा है और v को डिफरेंशिएट करने से आपको a मिल रहा है, ठीक है। यू आर गेटिंग a, एक्सेलरेशन। तो ज़्यादातर हमें क्वेश्चंस में जो है x का एक्सप्रेशन दिया रहेगा और उस x के एक्सप्रेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करके v का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और फिर v के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके हम लोग a का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। मतलब बेसिकली हमने क्या किया, बेसिकली हमने x के एक्सप्रेशन को दो बार डिफरेंशिएट किया है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं एक्सेलरेशन इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ समझाता हूँ कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, राइट, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है, तो ये सेकेंड पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिए। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है dv बाई dt, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब मैं अगर इसमें इसको dv बाई dt को ऊपर नीचे अगर मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं इस तरह से, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर दूं, मतलब मैं ये dx यहाँ लिख देता हूँ और dt को वहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा dv बाई dx इंटू dx बाई dt, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये dx को इधर लिख दिया, dt को उधर लिख दिया, मल्टीप्लाइड है तो आप वो थोड़ा एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये dx बाई dt क्या हो गया, ये हो गया v, ठीक है। तो ये dv बाई dx एज इट इज रह गया और ये हो गया v। तो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन का एक और एक्सप्रेशन मिल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन का यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन मिल गया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx, ठीक है। ओके, मैंने इस v को पहले लिख दिया और dv बाई dx को मैंने क्या किया, मैंने बाद में लिख दिया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx, मतलब मुझे मिल गया एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि क्योंकि राइट v और dv, तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन मिल गया, राइट, एक्सेलरेशन का v और x के साथ रिलेशन मिल गया मुझे। आई हैव गॉट द रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद v एंड x। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, राइट। ये हमें बहुत काम आएगा जब हम इक्वेशंस, काइनेमेटिक के इक्वेशंस डिराइव करेंगे, तो दिस विल बी वेरी यूजफुल टू अस, ओके। तो इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान रखिए, राइट। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाऊंगा कि एक्सेलरेशन जो है, राइट, वो उसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। तो वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग, अभी ये थर्ड पॉइंट है जो आप नोट डाउन कर लीजिए, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है और रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, इसका फिजिक्स में क्या मीनिंग, हम इसको क्या समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है कि जिसमें स्पीड बढ़े, राइट, स्पीड वो इंक्रीज हो,
स्पीड इंक्रीज हो। जैसे आप मानिए कोई कार चला रहे हैं, तो वो कार का अगर स्पीड बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, और अगर उसका स्पीड घट रहा है, अगर उसका स्पीड घट रहा है तो इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन मतलब डिसेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है। ये है सबसे बेसिक मीनिंग, ये पहले दिमाग में आना चाहिए कि एक्सेलरेशन मतलब क्या है और रिटार्डेशन मतलब क्या है। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो व्हीकल आप चला रहे हो, जो भी है, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, तो उसका स्पीड अगर बढ़ रहा है, उसका अगर स्पीड बढ़ रहा है तो वो एक्सेलरेट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। और अगर उसका स्पीड घट रहा है तो वो डिसेलरेट हो रहा है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो स्पीड घट रहा है या स्पीड बढ़ रहा है, इससे डिफाइन होगा कि एक्सेलरेट हो रहा है या डिसेलरेट हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए अगर एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मतलब उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, उसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो क्या होगा इस केस में, तो इस केस में स्पीड बढ़ेगा, राइट। इस केस में क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है और जो वेलोसिटी है दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में है तो ये इसी तरह एक्सेलरेट करेगा, राइट। ओके, जैसे कि हम लोग कार चला रहे हैं, अब कार का वेलोसिटी आगे की तरफ है, आपने उसके साथ एक्सेलरेटर अगर आपने प्रेस कर दिया, राइट। गाड़ी में क्या होता है, ABC, एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। ठीक है ना। अभी गाड़ी जो है फुल स्पीड में चल रही है और आप एक्सेलरेटर दबा रहे हो तो क्या होगा, तो गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा, है कि नहीं, स्पीड बढ़ेगा। इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, चाहे दोनों का डायरेक्शन पीछे ही क्यों ना हो, मानो वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है जब तक, यानी वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों आगे हो या वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों पीछे हो, बट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तब तक स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गाड़ी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, राइट साइड चल रही है, राइट डायरेक्शन में चल रही है, और जो एक्सेलरेशन है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा। और मानिए गाड़ी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो भी स्पीड बढ़ेगा। तो स्पीड बढ़ने के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। तो इसको हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट वो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो आप बोले ऐसा कैसे, जैसे मान लो कि ये आई कैप है, आई कैप है, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 1, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। तो v डॉट ए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये है वी आई कैप, ये है ए आई कैप, तो वी आई कैप डॉट ए आई कैप विल बी वी ए, राइट। मैं आपको यहाँ पे लिख कर देता हूँ। इससे पहला केस के लिए होगा वी आई कैप, राइट। मैंने इसका वेक्टर फॉर्म लिख दिया है, मैंने इसका वेक्टर फॉर्म लिख दिया है। ये हो गया वी आई कैप, ये हो गया ए आई कैप, राइट। मैं इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया है। तो वी आई कैप डॉट ए आई कैप क्या होगा, ये हो जाएगा वी ए, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ वी ए हो जाएगा, और v का मॉड a का मॉड, राइट। जैसे a डॉट b क्या होता है, मॉड a मॉड b कॉस थीटा, तो मॉड v मॉड a कॉस 0, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ग्रेटर देन 0। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब भी एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 0। ओके, अब रिटार्डेशन में आते हैं। रिटार्डेशन कब होगा, रिटार्डेशन तब होगा जब वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन उसके अगेंस्ट है, यानी आप ब्रेक लगा रहे हो। ठीक है, जैसे गाड़ी आगे चल रही है फास्ट एकदम और आपने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो क्या हुआ, ब्रेक लगाया इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी के अगेंस्ट आप एक फोर्स क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, यानी वेलोसिटी के अगेंस्ट आप एक्सेलरेशन तैयार कर रहे हो, तो इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो गाड़ी का स्पीड है वो कम हो जाएगा, गाड़ी का स्पीड या व्हीकल का स्पीड यहाँ कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप दूसरा एग्जांपल ले लो कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, गाड़ी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है और फिर से आपने ब्रेक लगाया, तो अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन उसके अगेंस्ट हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दो केसेस हमने लिए हैं। ठीक है, ये अलग अलग दो केस है। ये जो है इस साइड वाला ये केस 1 मैं कह देता हूँ उसको, और इधर वाला जो है वो है केस 2। तो केस 1 में कैसा हो रहा है कि गाड़ी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी आपने ब्रेक लगाया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ब्रेक जो है वो लगाया है, यानी ब्रेकिंग एक्शन क्रिएट किया है।
और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेटर जो है वो हम लोग दबा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेटर प्रेस कर रहे हैं, तो ये है। तो अगर आप ब्रेक लगा रहे हो, ब्रेकिंग एक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो उसके वेलोसिटी के अगेंस्ट होगा। अब आप मान लो कि यहाँ पे ये जो है पार्टिकल, ये या कोई व्हीकल या कोई कार, कोई ऑब्जेक्ट, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और आपने ब्रेक लगा दिया, तो अब ब्रेक उसके अगेंस्ट है, यानी ब्रेक पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। लेकिन फिर भी इसको रिटार्डेशन कहेंगे, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इससे आप ये नहीं कह सकते कि रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है, ठीक है। जैसे इसमें आप देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर भी हम इसको रिटार्डेशन कहेंगे, और यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर भी हम इसको रिटार्डेशन कहेंगे, ठीक है। तो रिटार्डेशन कैसे डिफाइन होता है, जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अगेंस्ट हो तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के, जैसे ये वेलोसिटी यहाँ पे आगे, वेलोसिटी के अगेंस्ट हो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के अगेंस्ट, तो उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि बचपन में हमने कैसा पढ़ा है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव में है तो रिटार्डेशन। ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे आप, तो हमेशा लेस देन जीरो आएगा, ठीक है। हमेशा क्या आएगा, लेस देन जीरो, क्योंकि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों के बीच का जो एंगल है यहाँ पे थीटा जो है वो 180 डिग्री है, राइट। अगर एक्सेलरेशन आप देखो, इस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी वी आई कैप है, डॉट यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस आई। तो आप जो इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई डॉट आई वन, एक माइनस साइन बच जाएगा, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, कुल मिला के ये हो जाएगा लेस देन जीरो, नेगेटिव आ जाएगा, यानी माइनस ए भी आ जाएगा। तो ये हमें कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि जब भी एक्सेलरेशन होगा, यानी गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है, तो दो बातें होंगी। एक तो ये होगा कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, और उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। ये दो पॉइंट समझना जरूरी है, ठीक है। और एक और पॉइंट आप समझ सकते हैं कि जब भी एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड बढ़ेगा। जो स्पीड है, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी का मॉड, राइट। वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड, उसी को हम स्पीड कहते हैं या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो स्पीड बढ़ेगा, ऑलराइट। तो ये तीन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली ये कि जो इंस्टेंटेनियस यहाँ पे जो स्पीड है वो स्पीड बढ़ने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन है दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, और तीसरी बात, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। ये तीन चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो और रिटार्डेशन मतलब क्या है, रिटार्डेशन का मतलब पहले कि स्पीड तो घटेगा घटेगा, रिटार्डेशन हो रहा है तो स्पीड को घटना ही है। यानी जो मॉड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड, वो क्या होता है, वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड घटेगा। दूसरा, जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है इनके डायरेक्शंस अपोजिट होंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, तो और ठीक है, ये अगेंस्ट होगा। तीसरा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप लोगे तो क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं इस चीज को समराइज कर देता हूं यहाँ पे। आई जस्ट समराइज दिस, इस चीज को यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपको समराइज कर देता हूं कि जब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, राइट, तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा, तो होगा एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा, तो भी एक्सेलरेशन ही होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों केस में आपका a डॉट b जो है वो क्या हो रहा है, वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और अगर मान लीजिए कि ये वाला प्लस है, ये माइनस है, तो अब क्या होगा, अब होगा रिटार्डेशन। अब क्या होगा, अब रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी रिटार्डेशन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समझाया है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार एक्सेलरेशन ही होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो भी रिटार्डेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको ये यहाँ पे जो है ये a डॉट भी लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो।
तो इन दोनों केस में जो ये पहले वाले दो केस हैं, ये फर्स्ट टू केसेस, इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है यानी वेलोसिटी का जो मॉड है, ये स्पीड इसमें बढ़ने वाला है, स्पीड इसमें बढ़ने वाला है, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो भी स्पीड बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो ओवरऑल इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी स्पीड बढ़ेगा। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो स्पीड बढ़ने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव अगर होता है तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसका जो मॉड है वो घटने वाला है, वो डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और आपने देखा यहाँ पे डायरेक्शन किस तरह से डिफाइन होता है, किस तरह से होती है चीज़ें। तो स्टूडेंट्स आप इसको समझिए अच्छे से, ऑलराइट। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वी विल टेक फ्यू एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। तो पहले आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं लास्ट 3-4 लेक्चर्स में, उसको आप अच्छे से एब्जॉर्ब करिए, समझिए, ठीक है। और हम लोग जो है और अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्या लेंगे, जो भी हमने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, उसके एग्जांपल्स लेंगे। तो हम लोग अगले लेक्चर में जो है हम लोग बेसिकली तीन हम लोग फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो एक तो है अपना वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या कहीं कहीं पे x का एक्सप्रेशन दिया तो dx/dt लिखेंगे, ठीक है। वो जो भी क्वेश्चन में अगर x एज f ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम देगा तो फिर हम वैसा, राइट। तो जनरली आपको x ही दिया रहता है तो हम लोग ये dx/dt ही यूज करने वाला है, ठीक है। जनरली क्वेश्चंस में x के टर्म्स में दिया था, x इज इक्वल टू f(t). दूसरा हम लोग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जो यहाँ से वेलोसिटी है तो dv/dt, ठीक है। तो हम लोग उसको लिखते वक्त जनरली अब हम लोग सिर्फ लिखेंगे a इज इक्वल टू dv/dt, क्योंकि अभी हम लोग वी आर डीलिंग विद वन डायमेंशनल मोशन, तो हमारे लिए प्लस का मतलब होगा i कैप, माइनस का मतलब j कैप। तो हमें बट एक्चुअल एक्सप्रेशन यही है। और यहाँ भी जब हम लिख रहे हैं तो हमें अंडरस्टूड है कि ये वेक्टर ही है, ये वेक्टर ही है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, राइट। लेकिन जैसे कि वन डायमेंशन में आपके पास दो ही डायरेक्शन है, एक प्लस एक माइनस है। तो जब ये होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्लस dv/dt अगर लिखा हुआ होगा तो हम समझ जाएंगे कि जो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और अगर वो माइनस dv/dt लिखा हुआ तो हम समझ जाएंगे एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में। या यहाँ से समझ में आ जाए, प्लस और माइनस साइन से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है। लेकिन ये जो है ये एग्जैक्ट आपको जो एक्चुअल फॉर्मूला वो यही है वेक्टर फॉर्म में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। तो वो चाहे वन डायमेंशनल में हो, टू डायमेंशन हो, या थ्री डायमेंशन हो, तो हम इस तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन वन डायमेंशन में दो ही डायरेक्शन होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए कुछ कुछ किताबों में उसको बस ऐसे लिख दिया जाता है, a इज इक्वल टू dv/dt, वेक्टर का साइन नहीं लगाया जाता है। लेकिन साइन नहीं लगाया है फिर भी आपको समझना है कि वहां पे वेक्टर है, वो वेक्टर ही है, ये एक्सेलरेशन है और वो वेलोसिटी है। तो ये पहला फॉर्मूला, ठीक है, जो हम लोग यूज करेंगे। ये दूसरा और तीसरा जो मैंने बताया आपको कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx, तो ये जो है v dv/dx, तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म में हो गया, और ठीक है, ऑलराइट। और उसी को हम लोग जो है सिंपली वन डायमेंशनल मोशन में सिर्फ उसको क्या लिख देंगे, हम लोग उसको लिख देंगे v dv/dx। क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, हम लोग उसको लिख देंगे इस तरह से v dv/dx, और वो अंडरस्टूड है, वो सब वहां पे जो है वो क्वांटिटीज वो वेक्टर ही हैं, ऑलराइट। तो ये जो सब ये फॉर्मूले हैं इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप यहाँ तक के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ऑलराइट, टिल देन, ठीक है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद एग्जांपल्स एंड मोर कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन दिस।